Welcome to all of you. You are watching Pranjal Education. My name is Pranjal Hajarika. Please subscribe my channel to get daily notification. Watch full video, like, share, and subscribe. Okay, let's start. Himachal Pradesh state government has launched the Indira Gandhi Sukh Shiksha Yojana. So हिमाचल प्रदेश से उसका जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, ओके। Next is US President elected Donald Trump aimed to end the birthright citizenship, which could impact the millions, especially Indian Americans. Approximately 1.6 million Indian Americans born in US may be affected. The 14th Amendment currently guarantees automatic citizenship to anyone born on US. So जो बर्थ सिटीजनशिप मिलता है अमेरिका पे, जो भी इंडियन अमेरिका पे गए हुआ है और वहाँ पे बोर्न होने के बाद वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाता है, सो वो इफेक्ट कर रहा है यूएस की ये उसमें जनसंख्या पे। सो वो लोग इसके बंद करने की कोशिश कर रहा है। मे बी approximately 1.6 million Indian born in US may be affected. The 14th Amendment currently guarantees automatic citizenship to anyone born on US. सॉरी, बंद नहीं करने जा रहा है। 14th Amendment currently guarantees automatic citizenship to born anyone on US. The second 22 Dibba Kala Mela will occur from December 12 to December 22, 2024. तो 22वां डिब्बा कला मेला है वो 12 दिसंबर से शुरू होगा 22 दिसंबर तक 2024 के इंडिया के न्यू दिल्ली पे होगा ये। द इवेंट सेलिब्रेट द क्रिएटिविटी ऑफ दिव्यांग आर्टिसंस एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड एम्स टू एम्पावर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज थ्रू विजिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो फिजिकली हैंडीकैप होता है वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये। वो दिव्यांग क्रिएटिव आर्टिस्ट भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है। सो उन लोगों को आगे लाने की कोशिश किया जाएगा इसके ज़रिए, जो दिब्बा कला मेला है। सो ये 22वां है, ठीक है, नोट कर लेना कितने हैं, 22वां है ये। और दिसंबर 12 से शुरू हो रहा है दिसंबर 22 तक, ठीक है, न्यू दिल्ली इंडिया गेट। ओके। So National Panchayat Award 2024 honored 45 exemplary panchayats and took place on December 11, 2024 at Vigyan Bhavan, New Delhi. विज्ञान भवन न्यू दिल्ली पे ये हो चुका है नेशनल पंचायत अवार्ड 2024। ओके। प्रेसिडेंट अवार्ड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज। ओके, जो राष्ट्रपति जी भी थे और यूनियन जो मिनिस्टर है पंचायत का वो भी उसमें शामिल थे। Okay. The announcement of the Bharat Antariksa Station marked a milestone and is expected to be operational by 2035. An Indian astronaut is also anticipated to land on the moon by 2040, which reflect India's growing capabilities in space technology. बहुत बढ़िया न्यूज़ है ये अनाउंस कर रहा है कि भारत अंतरिक्ष जो स्टेशन है वो शुरू हो जाएगा, एक्सपेक्ट कर रहा है 2035 तक। और मे बी इंडियंस एस्ट्रोनॉट ऑल्सो एंटिसिपेटेड बाय लैंड मून बाय 2040, 2040 तक मून तक लैंड करने की सोच रहे हैं ये। इंडियाज ग्रोइंग कैपेबिलिटीज इन स्पेस टेक्नोलॉजी। ओके। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिपोर्टेड द प्रोबेबिलिटी of La Nina developing, which leads to cooler ocean surface temperature. However, current forecasts suggest that any cooling effect will be minimal. The Indian Skill Report 2025 published by WeBox and other notable organizations reveals that Kerala has the 71 employability rate, placing it fifth among states of India. Key finding of the report surveyed 6.50 lakh youth across in India. 71 employability rate। स्किल रिपोर्ट 2025 ये जारी किया है, ठीक है, आगे जा रहा है देश कहीं ना कहीं। द साउथ एशियन समिट 2024 took place at the Pirongudi dump yard and addressed the critical issues such as the waste management, climate actions, and gender equality. The theme was new realities, the new opportunities, which features over 40 seasons and 90 speakers. साउथ एशिया समिट है 2026 के। भाई इनिशिएटिव लिया गया है कुछ। ओके।
Universal Health Coverage Day observed annually on December 12, serving as a rallying point for the global movement advocating for health for all. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 दिसंबर एवरी ईयर। प्लीज नोट डाउन कर लेना, बड़े ही इंपॉर्टेंट है ये। टाइम मैगजीन हैज अनाउंस नेम डोनाल्ड ट्रम्प एज इट्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2024, मेकिंग द सेकेंड टाइम ही रिसीव दिस प्रेस्टिजियस रिकॉग्नाइजेशन। डोनाल्ड ट्रम्प है, सो उसका नाम एज ए पर्सन ऑफ द ईयर सेकेंड टाइम रिकॉग्नाइज हुआ है। 2024 का भी उसी का नाम हुआ है रिकॉग्नाइज, बहुत अच्छी बात है ये उनके लिए। The Asian Development Bank has approved as 500 million loan to support India's effort to expand the renewable energy and build climate resilience infrastructure. तो एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है तो अप्रूव क्या है, $500 बिलियन लोन टू सपोर्ट इंडिया के जो रिन्यूएबल एनर्जी एंड बिल्ड द क्लाइमेट रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, उनके लिए लोन प्रोवाइड किया गया है। $500 मिलियन डॉलर में है ये। ओके, ठीक है। The Indian Grandmaster Gukesh Dommaraju made history by becoming the youngest ever world championship after defeating the reigning champion Ding Liren in the decisive 14th game of the World Chess Championship match in Singapore Thursday, December 12। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया ग्रैंड मास्टर गुकेश डोमाराजू, सेकेंड टाइम में भी इंडिया का है ये। ओके, सो ये यंगेस्ट है, फर्स्ट है ये। इतनी कम उम्र का आज तक चैंपियनशिप इंडिया से शायद नहीं हुआ, ये फर्स्ट है इंडिया के, अगर यंगेस्ट के वेस में देखा जाए, और वैसे ये सेकेंड है। ओके, सो किसको हराया ये, डिंग लेरन। ओके, 14वां गेम था वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच। कहाँ पे हुआ था ये भी बहुत ज़रूरी है, सिंगापुर थर्सडे दिसंबर 12 को। ठीक है, बहुत ही बढ़िया दिन था ये इंडिया के लिए, 14वां है था ये। नाम फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा, गुकेश डोमाराजू जो विनर था, किसको हरा करके हुआ था, डिंग लेरन। कहाँ पे हुआ था, सिंगापुर पे। ओके, दिसंबर 12 को। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पूछ करके नोट डाउन कर लीजिएगा पूरा ये। So thank you so much for watching. Please hit the bell icon to get daily notification. Like, share and subscribe, and please comment for support. Thank you.